السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ طلباء کی کم تعداد پر 1284 سرکاری پرائمری سکولز بند کر دینے حکومت کا منصوبہ، وزیر ثانوی تعلیم کا اشارہ۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف وجے لکشمی کا مرن ورت شروع، دستبرداری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ تیز رفتار ہواؤں اور دھواں دھار بارش سے عام زندگی درہم برہم، سنگا ریڈی میں تباہی۔ ماروتی نگر علاقے میں برقی پول، 3 سالہ معصوم لڑکی پر گر پڑا، لڑکی کی حالت نازک۔ اور کڑپا اور ورنگل اضلاع میں خوفناک سڑک حادثات، جملہ 12 افراد ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر ثانوی تعلیم ڈاکٹر ایس شیلجا ناتھ نے کہا ہے کہ حکومت نے ایسے 1284 سرکاری پرائمری سکولز کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جہاں طلباء کی تعداد بہت کم ہے۔ قانون حق تعلیم پر عمل آوری کے سلسلے میں جوبلی ہال باغ عامہ میں منعقدہ ریاستی سطح کے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے انکشاف کیا کہ ریاست میں 884 سکولز ایسے ہیں جہاں پر طلباء موجود نہیں ہیں۔ اس ورکشاپ میں ماہرین تعلیم، دانشور اور ٹیچرز تنظیموں کے نمائندے اور ٹیچرز اور گریجویٹ زمرے کے ارکان قانون ساز کونسل نے شرکت کی۔ ورکشاپ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ثانوی تعلیم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سرکاری اسکولز میں معیاری تعلیم فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ایک اور اجلاس طلب کرتے ہوئے حکومت مشاورت کرے گی۔ شیلجا ناتھ نے بتایا کہ قانون حق تعلیم کے تحت کرائے گئے سروے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ریاست میں 1,60,000 طلباء ایسے ہیں جو اسکولز میں داخلہ لینے کے بعد روزانہ اسکولز نہیں جاتے۔ అన్ని ఫీజులు ప్రతి ఒక్కరు అమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం। ఇక్కడ ఇప్పుడు నిర్ణయాలు ఏవి ఇక్కడ నిర్ణయాలు అంటే ఏమి లేవు। వాటన్నిటి కోసమనే ఈ సమావేశాన్ని అనేక అంశాల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి, ఉదాహరణకి ప్రైవేట్ కాలేజ్ స్కూల్ కోర్టుకు వెళ్ళాయి, కానీ లాటరీ తీయడానికి మమ్మల్ని కోర్టు మాకు అనుమతించింది ప్రభుత్వానికి। అంటే ఎవరికి వాళ్ళు చేసేది కాకుండా లాటరీ తీయాలి, ఆ లాటరీ ఏ విధంగా తీయాలా అనే అంశాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం। ఇలాగే హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్లో لازمی تعلیم کے قانون پر عمل آوری سے متعلق وزیر ثانوی تعلیم کی جانب سے طلب کیے گئے اجلاس میں اردو ٹیچرز یونین کے نمائندے نے اردو میڈیم اسکول سے متعلق حکومت کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ اردو میڈیم اسکولز یتیم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کڑپا سے تعلق رکھنے والے ہدایت اللہ نے بتایا کہ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے 50% اردو میڈیم اسکولز بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز میں طلباء کو بنیادی سہولتیں تک فراہم نہیں کی گئیں۔ قانون حق تعلیم اردو میڈیم اسکولز پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ برقی شرحوں میں کیے گئے اضافے پر غور کے لیے جاریہ ماہ کی 4 اور 5 تاریخ کو ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ضلع نیلور میں جاری اندرما باٹا پروگرام کے دوسرے دن اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غریب عوام پر برقی شرحوں میں اضافے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ یہ غریب عوام کی حکومت ہے، سرمایہ کاروں کی نہیں۔ ضلع نیلور کے KGR پالم میں وزیر اعلیٰ نے اندرا جلا پربھا پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کو منافع بخش بنانے کے لیے اندرا جلا پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمزور اور پچھڑے طبقات کی بہبود حکومت کا مقصد ہے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ SC/ST کی 1.9 لاکھ ایکڑ اراضیات کو بورنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے 39,000 خاندانی تنازعات کی یکسوئی کی گئی ہے۔ وائیسآر کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وجے لکشمی نے کہا ہے کہ برقی شرحوں میں کیے گئے اضافے سے دستبرداری تک وائیسآر کانگریس کا احتجاج جاری رہے گا۔ نیو MLA کوارٹرز میں برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف مرن برت کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ ان کی پارٹی عوام کے ساتھ ہے۔
انہوں نے کرن کمار ریڈی حکومت کی جانب سے عائد کیے گئے اضافی بوجھ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وجے لکشمی نے کہا کہ عوام پر سرچارج کے نام پر 2000 کروڑ روپے کا زائد بوجھ عائد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی سربراہ باقاعدہ طور سے نہیں کی جا رہی ہے لیکن بلز برابر وصول کیے جا رہے ہیں۔ YSR کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر نے کہا کہ برقی بحران سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ YSR کانگریس کے اقتدار پر آنے پر 5 سالوں تک برقی شرحوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ YSR کے دور میں باقاعدہ مفت برقی سربراہ کی جاتی تھی لیکن ان کے بعد اس اسکیم کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ ریاست کو نااہل حکومت سے بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور اگر چندرا بابو نائیڈو اس تحریک کی تائید کے لیے آگے آتے تو آج یہ نااہل حکومت اقتدار پر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے وجے لکشمی نے صبح لوٹس پاؤنڈ پر پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس بھی طلب کیا۔ بعد میں پنجا گٹے پر YSR کے مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد وہ بشیر باغ پہنچیں جہاں انہوں نے سال 2000 میں برقی مسئلے پر احتجاج کے دوران ہلاک کیے گئے مظاہرین کو خراج پیش کیا۔ بعد میں وجے لکشمی نے نیو MLA کوارٹرز پہنچ کر بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ اس موقع پر 27 ارکان اسمبلی اور 14 ارکان کونسل موجود تھے۔ ప్రతిరోజు ఆయన వదిలిపెట్టకుండా ఆయన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। ఇవాళ మొన్న అవిశ్వాసం 2 సార్లు ప్రజల పక్షంగా మరి మాకు బలం తక్కువ ఉన్నా కూడా మనం అవిశ్వాసం పెట్టడం జరిగింది। మరి ఈ అవిశ్వాసంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉండి ఏదైనా జరగాలంటే ఆయన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। మరి అట్లాగే ఆయన ఆ రోజు అవిశ్వాసానికి రాకుండా ఈరోజు బయట కూర్చొని ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। ఇవాళ ریاست سنگین برقی بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ عوام مسلسل برقی کٹوتی سے پریشان ہیں۔ نہ صرف برقی شرحوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے بلکہ FSA کے نام پر شہریوں پر زائد بوجھ بھی ڈال دیا جا رہا ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں برقی کے مسئلے پر مسلسل احتجاج اور بھوک ہڑتالوں میں مصروف ہیں لیکن محکمہ برقی کے عہدیداروں کی غفلت اور لاپرواہی بھی بدستور جاری ہے۔ شہر کے کئی اہم علاقوں پتلی بولی اور ریاستی قانون ساز اسمبلی کے روبرو بھی ہائی ماس لائٹس اور اسٹریٹ لائٹس دن بھر کھلے رکھے جا رہے ہیں۔ حکومت برقی بحران کا رونا رو رہی ہے اور اس کے عہدیدار برقی اس طرح ضائع کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ کسی 1-2 مقام پر نہیں ہے بلکہ شہر کے کئی علاقوں اور کئی سڑکوں پر یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان عہدیداروں کو برقی بحران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور عوام کی مشکلات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ یہ برقی کے چارجز بھی آخرکار عوام سے ہی وصول کر لیے جائیں گے۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف تلگو دیشم کی دستخطی مہم کا منگل کو آغاز ہوا۔ پارٹی لیڈر سومی ریڈی چندرشیکھر ریڈی نے یہ مہم شروع کی جو 9 اپریل تک جاری رہے گی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومی ریڈی نے عوام سے اس دستخطی مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ نے آخر اب تک برقی بحران پر جائزہ اجلاس کیوں طلب نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی مسائل پر کرن کمار ریڈی کو تلگو دیشم دور حکومت سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ سومی ریڈی نے کہا کہ خشک سالی کے دور میں بھی باقاعدہ برقی سربراہ کی گئی تھی۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو اپوزیشن کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں کم از کم اپنی پارٹی کے قائدین کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ریاستی وزیر شیلا جنات نے کہا ہے کہ اندھی حکومت چلا چکے چندرا بابو نائیڈو کو حکومت کی سچائی نظر نہیں آئے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیلا جنات نے کہا کہ حکومت برقی مسئلے پر مباحث کے لیے تیار ہے۔ اسمبلی مباحث کا بہترین پلیٹ فارم ہے لیکن چندرا بابو نائیڈو اسمبلی میں مباحث کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں عالمی بینک کے ملازم کی طرح کام کرنے والے چندرا بابو نائیڈو نے جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں اسے عوام کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ شیلا جنات نے کہا کہ صدر تلگو دیشم چاہے کتنی ہی طویل پد یاترائیں کر لیں عوام ان پر بھروسہ نہیں کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ 4 اور 5 اپریل کو وزیر اعلیٰ نے برقی شرحوں میں اضافے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کا تیقن دیا ہے۔ اس کے باوجود اپوزیشن جماعتیں غیر ضروری سیاست پر اتر آئی ہیں۔ انہوں نے پارٹی قائدین کو بھی مشورہ دیا کہ پارٹی فورم میں ہی وہ اس مسئلے کو اٹھائیں، باہر
बयान देने से गुरेज करें। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि ईआरसी चंद्रबाबू नायडू की इजाद है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मजबूरी से आवाम को वाकिफ करवा दिया है और हुकूमत सदर तेलुगुदेशम की तरह मसले से फरार इख्तियार नहीं करना चाहती। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि 4 और 5 अप्रैल को मसले बरखी का जायजा लेने के बाद गरीब और मुतवस्सित तबके पर माली बोझ नहीं डाला जाएगा। बरखी शरहों में इजाफे से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश करने वाले बीजेपी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय की क़ियादत में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर आला और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर बीजेपी कायदीन और कारकुन एहतजाज करते हुए वहीं बैठ गए। बाद में पुलिस ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से रियासत दिवालियापन का शिकार हो गई है। उन्होंने इजाफा शरहों से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। यकम मई से अवामी तकसीमी निज़ाम के ज़रिए सफ़ेद राशन कार्ड गिरिंदों को 185 रुपये में 9 अक़साम की ज़रूरी अशिया सरबराह की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ जी श्रीधर बाबू ने ये बात बताई। ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि 11 अप्रैल को उगादी के मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से 7.5 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ने बताया कि इस स्कीम पर हुकूमत 660 करोड़ रुपए सब्सिडी को बर्दाश्त करेगी। उन्होंने बताया कि 9 अक़साम पर मुश्तमिल ज़रूरी अशिया को थैली की पैकिंग में सरबराह किया जाएगा। श्रीधर बाबू ने बताया कि ज़िले कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों को इस स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। एक सवाल पर श्रीधर बाबू ने बताया कि अगर कोई 1 या 2 अशिया ख़रीदना चाहता है तो ये सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। उन्होंने बताया कि अब तक 7 लाख बोगस राशन कार्ड्स मनसूख किए जा चुके हैं और 16 लाख राशन कार्ड्स की दरखास्तों की यकसुई की जानी है। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ने बताया कि जिनके पास राशन के कोपिन्स हैं वो भी इस स्कीम से इस्तेफ़ादा कर पाएंगे। एक सवाल के जवाब में श्रीधर बाबू ने बताया कि नकद रकम मुंतकिली स्कीम को आधार कार्ड से मरबूत करने पर अमल आवारी की मुद्दत में मज़ीद तोसी के लिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने अवाम से अपोजिशन के प्रोपोगंडे पर तवज्जो न देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला और सदर प्रदेश कांग्रेस ने यह वाज़ेह कर दिया है कि गरीब आवाम को इससे कोई मुश्किल नहीं होगी। अपोजिशन समाज के जिस तबके की बात कर रही है, हुकूमत उस पर बोझ आयद नहीं करेगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि ईआरसी एक आज़ाद इदारा है और हुकूमत ने उसके उमूर में मुदाखलत करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलुगुदेशम को बरखी मसले पर बात करने का अखलाकी हक़ ही नहीं है। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के के बलदी डिवीज़न अकबर बाग में आब रसानी से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट्स के कामों और पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक़ मसाइल का मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया जिसमें रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। अहमद बलाला ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह अकबर बाग डिवीज़न में तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों की फौरी तकमील करें। आवाम को जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनको फौरी दूर किया जाए। रुकन असम्बली अफसर खां ने भी अपनी क़ियामगाह पर महकमे बरखी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। मीडिया से बात करते हुए अफसर खां ने बताया कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत के अलावा ज़रूरत पड़ने पर नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाए जाएंगे। उन्होंने महकमे बरखी के AE और DE को हिदायत दी कि वो पीने के पानी की सरबराही के औक़ात में बरखी बंद न करें ताकि शहरियों को पीने का पानी बिला खलल दस्तयाब हो सके। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए एक फ़हरिस्त तैयार की गई और बाकी ओहदेदारों के हवाले की गई। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया A अरुणा भी मौजूद थी। तमाम ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम कामों के ऊपर
रिव्यू किया गया और तमाम AD और DE ऑपरेशन वगैरह सभी थे हमारे साथ और पूरे ट्रांसफार्मर्स के बारे में और दूसरे कामों के बारे में भी मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम कामों की फहरिस्त दी गई और लेटर्स दिए गए। हमारे कारपोरेटर अपने अपने एरिया के पूरे प्रॉब्लम बताए जिससे सब ऑफिसर्स ने हमको तयक़ुन दिया है कि 8 दिन के अंदर सब काम तकमील होंगे। जो मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बानी जामे निज़ामिया हज़रत शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फ़ज़ीलत जंग रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और सालाना जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 11 और 12 अप्रैल को उर्स शरीफ मुनक़िद किया जाएगा और इस ज़िमन में 7 अप्रैल को एक सेमिनार मुनक़िद होगा। उन्होंने इस सिलसिले में जामे निज़ामिया के बलदी बरक़ी और आबरसानी मसाइल का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को फ़ौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स, पानी के टैंकर्स की सरबराही के अलावा सड़कों की मरम्मत के काम भी शामिल हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि उर्स शरीफ और जामे निज़ामिया के सालाना जलसे की तकारीब की तैयारियाँ गुज़िश्ता साल से बेहतर अंदाज में की जाएगी। इंशाअल्लाह सरकारी सतह पर मजलिस बल्दिया की तरफ से बेहतरीन इंतज़ामात हस्ब साबिक़ होंगे, बल्कि उससे अच्छे होंगे। और कल से यहाँ पे बल्दिया का अमला काम का आगाज़ करेगा। अंदरूनी हिस्से में, बाहर के हिस्से में जो डिब्रीज़ है और पैच वर्क करने का है, स्ट्रीट लाइट की दुरुस्ती है उसको चालू करने का है, पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम, ये तमाम इंतज़ाम की हिदायत दी गई। हज़रात, आप जानते हैं कि हर साल हज़रत बानी जामिया हज़रत शेखुल इस्लाम के उर्स शरीफ के मौके पर जलसे तक़सीम असनाद मुनक़िद होता है और उसके इंतज़ामात के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ़ महकमात से रब्ता अदा किया जाता है। यहाँ के मुतल्लिक़ा MLA साहब जनाब अहमद पाशा कादरी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP साहब की दिलचस्पी और ताउन से ये इंतज़ामात तकमील पाते हैं। इस साल भी इन हज़रात को तकलीफ़ दी गई और ये सारे के सारे अहदेदार मुख्तलिफ़ महकमात के आए और इंतज़ामात का जायज़ा लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 अप्रैल को जो सेमिनार हो रहा है और 11 और 12 को जो जलसे सालाना और उर्स शरीफ का इनेकाद हो रहा है, इसमें ये सारे इंतज़ामात बहुस्न खूबी अंजाम पाएंगे। आप हज़रात से सबसे ताउन की उम्मीद है। तेलंगाना के नौजवानों की खुदकुशी को बोगस करार दिए जाने के रेणुका चौधरी के रिमार्क्स पर JAC कायदीन ने सदर PCC से शिकायत करते हुए एक याददाश्त हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए JAC के कन्वीनर कोदंडाराम ने कहा कि रेणुका चौधरी AICC की तर्जुमान हैं। उनके रिमार्क्स पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, वरना उसे कांग्रेस पार्टी का नज़रिया समझा जाएगा। कोदंडाराम ने बताया कि सदर PCC ने तयक़ुन दिया है कि इस मसले को वो आला कमान से रुजू करेंगे। रेणुका चौधरी के रिमार्क के खिलाफ चारशंबे को तेलंगाना के तमाम DCC दफातर पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाने का फैसला किया गया। रुकने कौंसल यादव रेड्डी ने तेलंगाना के नौजवानों की कुर्बानियों की तौहीन करने वाली रेणुका चौधरी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे। मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि रेणुका चौधरी ने ओहदे के लालच में या फिर किसी और मकसद के तहत ये रिमार्क किया है, उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए। यादव रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आला कमान से रेणुका चौधरी के खिलाफ शिकायत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की आला क़ियादत भी इस मसले पर वजाहत करे कि आया ये रेणुका चौधरी के शख्सी रिमार्क्स हैं या फिर पार्टी का नज़रिया है। बलदी हल्के मलकपेट कदीम के रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर ने अपने डिवीज़न के वार्ड कमेटी मेंबर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बलदी मसाइल की यकसुई के लिए किए जा रहे इक़दामात और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। बलदी अहदेदार और सीनियर मजलिसी कारकुन सैयद अलीम भी इस इजलास में मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने अपनी ही पार्टी के रुकन असम्बली मुत्तयम रेड्डी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बशीर बाग पर मुत्तयम रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। गुज़िश्ता दिनों मुत्तयम रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसल फारूक हुसैन के दरमियान मेदक ज़िला जायज़ा इजलास में बहस व तकरार हो गई थी। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने मुत्तयम रेड्डी से मुतालबा किया कि वो माज़रत खाही करें। तेज़ रफ्तार हवाओं और धुआंधार बारिश ने न सिर्फ हैदराबाद
बल्कि तेलंगाना के बेशतर इलाकों में आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद में दोपहर के बाद से हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कई मुकामात पर पौधे उखड़ गए और झाड़ों की डालियां टूट कर गिर गईं। शहर में कहीं कहीं मौजूद फुटपाथों को भी नुकसान पहुंचा। शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम की इस तब्दीली से शहरियों को कुदरत से राहत जरूर मिली, लेकिन आंधियों के झुकड़ों ने आम की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे शहर को पहुंचने वाले आमों की तादाद घट जाएगी और हो सकता है कीमतें भी बढ़ जाएं। यूं तो अक्सर अजला में बारिश का सिलसिला एक रोज पहले से जारी है, लेकिन हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में यह सिलसिला दोपहर बाद से शुरू हुआ। संगारेड्डी में हुई आधे घंटे की बारिश ने सारे टाउन को हिला कर रख दिया और कई तबाहियां हुई हैं। कई झाड़ जड़ों से उखड़ गए। इमारतों की छतों पर नस्ब सेलफोन टावर्स के उखड़ जाने की भी इतलात मिली है। संगारेड्डी की मशहूर मछली मार्केट तबाह हो गई है। करनूल, महबूब नगर, आदिलाबाद और दीगर अजला में भी बारिश और आंधी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। हैदराबाद में मुसलसल बढ़ते हुए दर्जे हरारत में अचानक कमी वाक़ई हो गई है। अलबत्ता महकमे मौसमियात के बमुजिब ये कमी आरजी नौयत की है और गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार रहेगी। न्यू मारुति नगर रोड नंबर 12 में तेज हवाओं से एक झाड़ और बरखी पोल गिर गया, जिससे 3 साला मासूम लड़की शदीद जख्मी हो गई। मकामी अफराद ने बताया कि पहले झाड़ उखड़ा, फिर उससे मुत्तसिल बरखी पोल गिर पड़ा और मासूम लड़की बरखी पोल की जद में आ गई। शदीद जख्मी हालत में इस लड़की को उस्मानिया दवाखाने में शरीक करा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। जिले कड़पा में पेश आए सड़क के एक खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा सुबह उस वक्त पेश आया जब एक हैदराबादी खानदान शहर से तिरुमला के लिए जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक इस खानदान की इनोवा कार सीमेंट से लदी एक लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि इनोवा गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 8 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक कम सिन बच्चा दवाखाने में इलाज के दौरान फौत हो गया। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। महलूकीन में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर वरंगल में पेश आए एक और सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक गोडूर मंडल के भूपति देहात में बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान ऑटो उलट गया, जिसकी वजह से 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। इस वाक़े में 2 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। एलबी नगर पुलिस ने इंजीनियरिंग तालिबा की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में एक जिम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन जिम के मालिक 26 साला प्रशांत रेड्डी ने मुतासरा तालिबा को अपने मकान ये कहते हुए बुलाया कि वो उसके आशिक के बारे में उसे अहम मालूमात फराहम करेगा, जो उसी के जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आता है। मुतासरा लड़की जैसे ही प्रशांत रेड्डी के मकान में दाखिल हुई, जहां वो अकेला था, उसने लड़की की इस्मत को तार तार कर दिया। प्रशांत रेड्डी ने इस वाक़े के बारे में किसी को बताने पर उस लड़की को धमकी दी कि वो उसे जान से मार देगा, लेकिन मुतासरा लड़की ने पुलिस में प्रशांत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस मुतासरा लड़की को दवाखाना मुंतकिल करके प्रशांत रेड्डी से पूछताछ कर रही है। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में एक पेंट की दुकान से ज़ायद 53,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि इतवार की शब वो दुकान में रकम रख कर गए थे। पड़ोसियों ने पीर की सुबह उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी कि उनकी दुकान में सरखा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 11 साल से दुकान में रकम रखा करते हैं, लेकिन कभी भी सरखा नहीं हुआ था। शहर के मसरूफ इलाके कोठी के पास पेश आए आतिशबाजी के एक वाक़े में फुटपाथ पर कायम 16 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक चप्पलों, किताबों, ख़वातीन के मलबूसात और दीगर कपड़ों की दुकानें इस आग से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
متاثرین نے قریب 60 لاکھ روپے کے نقصان کا اندازہ بتایا ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی تقریباً 16 فائر انجنوں نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آتش زدگی واقعے کے فوری بعد بلدیہ کے زونل کمشنر نے بھی علاقے کا دورہ کیا، جس کے بعد فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب دیگر دکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ متاثرین نے حکومت سے نقصانات کی پابجائی کے لیے معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار طلباء کی کم تعداد پر 1284 سرکاری پرائمری سکولز بند کر دینے حکومت کا منصوبہ، وزیر ثانوی تعلیم کا اشارہ۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف وجے لکشمی کا مرن ورت شروع، دستبرداری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ تیز رفتار ہواؤں اور دھواں دھار بارش سے عام زندگی درہم برہم، سنگاریڈی میں تباہی۔ ماروتی نگر علاقے میں برقی پول، 3 سالہ معصوم لڑکی پر گر پڑا، لڑکی کی حالت نازک۔ اور کڑپا اور ورنگل اضلاع میں خوفناک سڑک حادثات، جملہ 12 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔